electric dipole and electric dipole moment. आज का टॉपिक नेम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, so first we define what is electric dipole. If two equal and oppositely charges, if two equal in magnitude and oppositely charges means in sign, separated by some distance, say a और 2a भी कर सकते हैं, और किसी अदर बुक्स में और या 2r भी हो सकता है, d और 2d भी हो सकता है. मीन्स a और 2a और या 2r, d और 2d जो भी है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्जेज. सो if two equal and oppositely charges separated by some distance, then this system is called electric dipole. मीन्स यदि यहाँ पर +4 कूलम है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -4 कूलम. यदि +8 कूलम यहाँ पर है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -8 कूलम, एंड सो ऑन. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? If two equal and oppositely charges separated by some distance, then this system is called electric dipole. Okay. If two equal means in magnitude, equal and oppositely charges separated by some distance, means these two charges exist in electric field created by them, then this system is called electric dipole. Okay, as shown in the figure. Electric dipole having a dipole moment. Electric dipole having dipole moment. Which is a vector quantity denoted by vector p, where mod of vector p is equal to q into a or 2a. That is P is equal to Q into A. Okay, where A is distance between two oppositely charges. यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता? मीटर. ओके, तो यूनिट होगा कूलम इनटू मीटर. ठीक है. Though dipole moment is a vector quantity denoted by vector p, hence
it having magnitude as well as direction. Magnitude is determined by this formula and direction of vector P from negative charge to positive charge. Means vector P है, इसका डायरेक्शन कैसे होगा? From negative charge to positive charge. Since dipole moment is a vector quantity, hence it having magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Okay, magnitude is determined by this formula and direction of vector P from negative charge to positive charge. ठीक है, direction of vector P from negative charge to positive charge. Okay, as shown in the figure. Okay, a vector P है, डायरेक्शन किधर है? माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं. एक क्वेश्चन देख लिया जो there are an equilateral triangle of side A and at two corners minus q charge and at third corner plus 2q charge. Then find the net electric dipole moment of this configuration of charge. Okay, question is there are an equilateral triangle of side A and at two vertices means corners minus q charge placed and at third corner plus 2q charge placed. Then find the net electric dipole moment of this charge system. Okay, a question है. तो सॉल्यूशन, तो क्या इन माइनस क्यू चार्ज के बीच क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है. डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्जेस मींस साइन में अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. तो इसके बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा. यदि माइनस क्यू प्लस क्यू कंसिडर करें तो इसके बीच भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा. इस माइनस क्यू और इस प्लस 2q को एक साथ ले तो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है. बट यदि इसमें से एक प्लस क्यू इस माइनस क्यू चार्ज के लिए कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, और यदि एक प्लस क्यू इसमें से इस माइनस क्यू चार्ज के लिए कंसीडर करें तो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा. ओके, और डायरेक्शन कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो इसके अलावा वेक्टर पी का डायरेक्शन और यह वेक्टर पी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज अब चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है. ओके, फिर मॉड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ए. चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए. ओके, तो ए. बट यहाँ पर इस पॉइंट पर जो डाइपोल मोमेंट का टू डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टली है और ए वाला नाइदर हॉरिजॉन्टल है नॉर वर्टिकल है. बट इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा? 60. ए भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा. क्लियर? अब इसको हम लोग डिकम्पोज कर लेते हैं. जो वेक्टर या
जो डाइपोल मोमेंट है नाइदर हॉरिजॉन्टल एंड नॉर वर्टिकल, तो इसको हम लोग वेक्टर के रूल से डिकम्पोज कर लेंगे। इसका इस साइड कंपोनेंट क्या मिलेगा, पी कॉस थीटा, तो एक कंपोनेंट और आ जाएगा। पी ऑलरेडी पहले से है, पी एक न्यू फिगर बना दे रहे हैं, ओके, पी ऑलरेडी पहले से है, इसका कंपोनेंट मिलेगा प्लस पी कॉस 60 डिग्री, ओके, और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना मिलेगा, पी साइन 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, पी √3/2। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे p प्लस p/2 इज इक्वल टू 3p/2, ओके। और एक कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, x कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, y कंपोनेंट। और x कंपोनेंट y कंपोनेंट एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर, तो इसका नेट हम लोग निकाल लेंगे, ओके, p नेट। तो p नेट इज इक्वल टू इन रूट पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर। पी एक्स के वैल्यू कितना है, 3p/2 का होल स्क्वायर प्लस, और पी वाई की वैल्यू कितना है, p√3/2 का होल स्क्वायर, ओके। 9p का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3p²/4। इसको समराइज करेंगे तो कितना आएगा, 12p²/4। 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज पी नेट इज इक्वल टू p√3। वैल्यू पुट कर देंगे, p का वैल्यू कितना था, qa√3। यूनिट क्या होगा, कूलम इनटू मीटर, ओके। तो दिस इज आंसर हो गया आपका। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. हेडिंग है आपका मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन a uniform electric field. वेक्टर ए, ठीक है, ये आपका हेडिंग है। केस नंबर फर्स्ट, इफ वेक्टर पी इज पैरेलल टू वेक्टर ई as shown in the figure। फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। इलेक्ट्रिक, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एग्जिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एच, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई है, एंड पी को कैसे रखना, ई के पैरेलल। और P का डायरेक्शन कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज इस साइड रखेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ओके। वेक्टर P होगा और वेक्टर P का डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर P का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स दिस। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इफ वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर E, मीन्स वेक्टर P और वेक्टर E के बीच में एंगल कितना है, 0 है, ओके। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा रिवीजन दे दे रहे हैं यहाँ पर।
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट सेटअप है ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड ई है, और इसमें यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिजिकल टू क्यू ई, और डायरेक्शन कैसे होगा, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इस पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिजिकल टू क्यू ई होगा, बट डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी रूल से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा कितना मैग्नीट्यूड का, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये वेक्टर ई आपको दिखाया गया यहाँ पर कर देते हैं, मॉड वेक्टर इज इक्वल टू ई। क्लियर? और डायरेक्शन किधर होगा, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रूल से। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, तो इन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो दो चार्ज इन्वॉल्व है, दोनों चार्ज पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन के अपोजिट है, बट इन दो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है सेम है, इसलिए एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन का मीन्स ये होता है कि यदि कोई पार्टिकल पर ए फोर्स लगा, ऐसे ए फोर्स है, ओके, कोई पार्टिकल पी है, यदि इस फोर्स के डायरेक्शन में फ्रंट साइड मीन्स आगे और बैक साइड से लाइन ड्रा कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हुआ है, इस पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेम है और डायरेक्शन के अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इसलिए एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? तो इन दिस केस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। In this case, F net is equal to 0. Therefore, torque experienced by electric dipole is equal to also 0, because of torque is equal to होता है F perpendicular into R या F into R perpendicular. Clear? By this relation यदि F net की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। Therefore, net motion of the electric dipole is to be not occurs. Hence, there is no any type motion of electric dipole. एक केस नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं हम लोग। इफ P is anti parallel to, if P is anti parallel to vector E as shown in the figure, तो फिगर हम लोग को चेंज करना होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस वे में एग्जिस्ट कराना होगा जो कि वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच के एंगल कितना रहे, 180 डिग्री। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज यहां पर कर दें और प्लस क्यू चार्ज यहां पर। ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा कितने मैग्नीट्यूड का, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, डायरेक्शन किधर होगा, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर भी फोर्स लगेगा कितने मैग्नीट्यूड का, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बट डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में भी जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो दोनों चार्ज इन्वॉल्व है उन पे जो फोर्स लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, उनमें मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। देयरफॉर इन दिस केस also F net is equal to 0, hence tau is equal to also 0,
Therefore, no any types of motion of electric dipole. Therefore, no any type motion of electric dipole. Okay. रीजन वही है बिकॉज ऑफ टाउ इक्वल टू क्या आता है एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, आर इसी को हम लोग कह सकते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, जब एफ नेट है जीरो है तो टार की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब थर्ड केस की हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल exists making an angle theta as shown in the figure, means there are theta angle between vector P and vector E. Vector E means electric field को सपोज किया गया लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड किया गया जो कि ई के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, आप प्लस माइनस क्यू कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस क्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस क्यू कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू कर सकते हैं, कहीं भी प्रति करना पड़ेगा। तो इस पर एफ इज इक्वल टू क्यू ई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन किधर होगा, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज पर भी फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ओके, यहां पर भी एफ नेट जीरो है, एफ नेट देखेंगे तो जीरो है, बट जो इस फोर्स और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, कॉमन नहीं है, मीन्स सेम नहीं है, क्या है, डिफरेंट है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, तो यह फोर्स एक कपल बनाएगा, मतलब फोर्स ऑफ कपल फोर्स बनाएगा, ड्यू टू विच टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ओके, इन दिस केस नंबर थर्ड, if vector P means electric dipole making some angle, say theta, with electric field vector E as shown in the figure. Okay, hence in this case though magnitude of forces experienced by charges means plus q and minus q involving electric dipole will be equal, but line of action of force means forces not same, therefore these couple forces make a torque, therefore these couple forces make
a torque of magnitude यहां पर लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, माना वेक्टर टाउ इज इक्वल टू टाउ एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। आर इसी को हम लोग कह सकते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, यदि इस पॉइंट को हम लोग ऐसे फिक्स कर लें तो ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, और यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस पॉइंट को फिक्स कर लें, इसको पकड़ लें, तो यह फोर्स इसको इस साइड घुमाएगा। ओके, तो यदि इस पॉइंट को फिक्स कर लें तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रा कर दे रहे हैं। यदि एंगल थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, सब जगह थीटा होगा, और ए थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके, और यदि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज इन्वॉल्व हुआ है, यदि उनके बीच का डिस्टेंस 2a सपोज हम लोग करें, 2a, ए भी सपोज कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, 2a। ओके, 2a, तो एंगल थीटा है, और यहां से इस पॉइंट से यहां पर जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हाइपोटेनस है, और एंगल थीटा तो बेस हुआ, तो ए कितना होगा, 2a sin थीटा। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक, तो इसमें वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे। एफ की वैल्यू कितना है, यहाँ पर रखेंगे क्यू ई और आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मीन्स इस फोर्स का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वैल्यू है, 2a sin थीटा। एडजस्ट करके इसको हम लोग लिख सकते हैं q इंटू 2a e sin थीटा। ओके, दैट इज टाउ इज इक्वल टू pe sin थीटा, ए मैग्नीट्यूड है। ठीक, बिकॉज ऑफ इस वैल्यू की जगह क्या रखा गया, p, वाई, बिकॉज ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2a। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में जो दोनों चार्ज इन्वॉल्व हुआ, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, यहाँ पर 2a डिस्टेंस कंसीडर किया गया। ओके, तो बाय दिस रिलेशन p इक्वल टू q इंटू 2a, यहाँ पर वैल्यू p रखा गया। ओके, और टॉर्क का यूनिट जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, वही यूनिट होगा। ठीक है, तो दिस इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल exist in theta position in a uniform electric field of magnitude E। ठीक है, ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन थीटा पोजीशन। पोटेंशियल energy storage in electric dipole in theta position in a uniform electric field vector E as shown in the figure। ओके, ये आपका हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक भी जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल in theta position in uniform electric field vector E as shown in the figure. So if we differentiate torque with respect to theta with negative sign, then we get electric potential energy storage in electric dipole in theta position. Okay. If we differentiate torque with respect to theta with negative sign, then we get potential energy storage in electric dipole in theta position. Okay, that is U theta means electric potential energy storage in electric dipole in theta position is equal to minus d d theta of टाउ मीन्स टार का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन, और टार का वैल्यू कितना था, डी डी थीटा ऑफ पी ई साइन थीटा. ओके, that is U theta means electric potential energy storage in electric dipole in theta position is equal to minus PE cos theta. This is expression for electric potential energy storage in electric dipole in theta position. Okay, ठीक है. न्यू हेडिंग है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट mod of vector P is equal to P in a uniform electric field of magnitude mod of vector E is equal to E. Okay, तो न्यू हेडिंग है what done by an external agent to moving an electric dipole of dipole moment P in a uniform electric field of magnitude mod of vector E means electric field का magnitude E है और electric dipole का जो dipole moment होगा उसका magnitude क्या P है. ओके, तो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ओके, यदि हम लोग थीटा 1 पोजीशन में, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा 1 पोजीशन में है और इसको थीटा 2 पोजीशन में लाया जाए तो किसी एक्सटर्नल एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि इसको छोड़ देंगे तो रोटेट करता रहेगा. क्लियर.
were done by an external agent to moving an electric dipole. Electric dipole means this in an uniform electric field. थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ा दे रहे हैं. From θ1 position from θ1 position to θ2 position, from θ1 position to θ2 position. Okay, so since we know that the magnitude of electric potential energy storage in electric dipole moment is equal to this in theta position, since u theta is equal to minus pe cos theta. तो θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन, therefore u θ1 is equal to minus pe cos θ1. This is u initial, and by this relation u θ2 is equal to minus pe cos θ2. This is u final. Since we know that in mechanics work done is equal to delta K is equal to delta U, where delta K change in kinetic energy and delta U change in potential energy. Okay, means K final minus K initial और U final minus U initial. ठीक है, यह मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हैं. Therefore W is equal to U final minus U initial is equal to U final की वैल्यू है माइनस PE cos θ2. ये माइनस फार्मूले का है और ये वैल्यू भी क्या है, माइनस है, माइनस PE cos θ1. ये वैल्यू पाइट हो जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू PE कॉमन मिलेगा PE cos θ1 minus cos θ2. Okay, this is expression for work done by an external agent to moving an electric dipole of dipole moment P in a uniform electric field of magnitude E from θ1 position to θ2 position. Clear? अब इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन by an external agent to moving an electric dipole moment of dipole moment P in a uniform electric field of magnitude E under the following condition. Under the following conditions means more than one question है. First, 0 degree to 180 degree. Second, 0 degree to 90 degree. And third, 30 degree to 60 degree. ये तीन आपका क्वेश्चन है. तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग अलग होगा, मीन्स आंसर अलग अलग आएगा.
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वाइडन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ओके, मैग्नीट्यूड है, in inform electric field of magnitude E under the following condition. तो ये 0 डिग्री से रोटेट करना है 180 डिग्री, ओके। सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो मीन्स ये आपका θ1 हुआ और ये क्या हुआ θ2 हुआ। ए वैल्यू जो पहला वैल्यू क्या होगा θ1, थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, θ1 हो गया है, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया θ2 हो गया, ठीक है। जहां से बोलेगा 0 टू 180 तो θ1 हुआ, ये क्या हुआ θ2 हुआ। तो सिंस W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ओके। PE θ1 की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस θ2 की वैल्यू कितना 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ओके। दैट इज, यहाँ पर लिख देते हैं W इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, माइनस cos 180 की वैल्यू कितना होगा -1 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज W इज इक्वल टू 2PE जो, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड में हम लोग θ1 की जगह कितना रखेंगे 0, θ2 की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री, एंड थर्ड क्वेश्चन में θ1 की वैल्यू कितना है 30 डिग्री और θ2 की वैल्यू कितना 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके, ठीक है। हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in for electric field, okay। तो टॉपिक है डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम state of an electric dipole in for electric field वेक्टर ई, आपका नहीं हेडिंग है, क्लियर। तो since we know that if we difference potential energy with a negative sign of a system, then we get force occurs on that system, okay। We know that if potential energy of a system, यहाँ पर किस सिस्टम की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। डिफरेंशिएट with negative sign then we get
force occurs on that system में से यदि किसी सिस्टम की यदि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को नॉन हो और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विथ नेगेटिव साइन, तो जो भी वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा. फोर्स अकर्स ऑन दैट सिस्टम. ओके, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx. मीन्स यदि पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यदि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग x का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा. ओके, तो इसी रिलेशन से सिंस वी नो दैट इन थीटा पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज in potential energy storage in electric dipole in theta position in for electric field is u theta is equal to minus pe what cos theta, जिसको आज ही डिराइव किया गया है. क्लियर? तो यह पोटेंशियल एनर्जी थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर? ओके, if F is equal to 0 then system exists in equilibrium state. यदि किसी सिस्टम का हम लोग को एनर्जी मालूम हो और नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? उस सिस्टम फोर्स निकल जाएगा. और यदि फोर्स का वैल्यू 0 होगा तो वह सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट होगा. बट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम. But there are 3 types of equilibrium state of a system. यहाँ पर हम लोग किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की. ओके, तो थीटा पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना था? u थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा. उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, x का फंक्शन आएगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. केस नंबर फर्स्ट. केस नंबर फर्स्ट, इफ d theta means second derivative. If second derivative of potential energy, if second derivative of potential energy of electric dipole is equal to negative, is a negative value, then potential energy of the system is maximum. Hence this type of equilibrium, hence this type of equilibrium and this type of equilibrium state of system is called
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, क्या कह रहेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, या as shown in the figure, ओके। जैसे हम लोग एक कोन की बात कर लें, कोन का यदि हेड ग्राउंड सरफेस पर किसी तरह से फिक्स कर दिया जाए और या इसको स्टैंड कर दिया जाए किसी तरह, मान लो पहले तो जल्दी से स्टेबल कंडीशन में आएगा नहीं, बस किसी तरह यदि इसको कोन का जो हेड है, ये बेस है, हेड को नीचे रखा जाए ग्राउंड सरफेस पर, किसी तरह यदि इसको रेस्ट कंडीशन में ला दिया जाए, थोड़ा सा भी इसको जर्किंग फोर्स लगेगा। जर्किंग फोर्स मीन्स फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, तो ये गिर जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन क्या है? यदि किसी सिस्टम को जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, यदि उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले हम लोग, यदि नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, तो देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यदि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? लेस होगा। तो इस टाइप को स्टेबिलिटी क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अब सेकेंड केस की हम लोग बात कर लेते हैं। एज शोन इन द फिगर फर्स्ट है, यहाँ पर एक फिगर फर्स्ट है। ओके, सेकेंड केस, इफ second derivative of potential energy is to be positive, then potential energy of the system is minimum. Hence this type of equilibrium state of the system is called stable. अब यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। एज शोन इन द फिगर सेकेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस टाइप का मीन्स इस टाइप का है, सॉरी मीन्स जो कोन है, कोई किसी कोन का बेस ग्राउंड सरफेस पर एज सच, और जो हेड है अपर साइड पे। ओके, ये फिगर सेकेंड हो गया, आपका फिगर चेंज हो गया। तो केस नंबर सेकेंड है, इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यदि पॉजिटिव मिले, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम होगा। और यदि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो इस टाइप का कौन हो, यदि थोड़ा सा इसको जर्किंग फोर्स लगा के डिस्प्लेस भी कर देंगे इस टाइप ऐसे, तो फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, जैसे कि बच्चों का खिलौना होता है, जो बच्चे खिलौना आप देखे होंगे, पैर से ऐसे मारते हैं फिर खड़ा हो जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो होता है। तो किसी भी सिस्टम का यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड सरफेस से बिलो है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सेकेंड केस देख लीजिए। थर्ड केस के बाद हम लोग करते हैं। ओके, इफ डी थीटा मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड केस की बात करते हैं। इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी 0 इज इक्वल टू 0, then this type of equilibrium state, then this type of equilibrium state of that system, of this system or that system is called न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। एज शोन इन द फिगर थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। मीन्स फिगर इस टाइप का होगा। मीन्स किसी कोन को यदि हम लोग
इस टाइप से रख दें, ओके, इस टाइप से एक ग्राउंड सरफेस से। तो यदि इस पर फोर्स लगा के इसके साइड को मीन्स जो अपर साइड और लोअर साइड कर दिया जाए तो भी इसके स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन क्या है? इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो, देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। आई होप से क्लियर होगा। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? डिस्कस ऑफ equilibrium state of an electric dipole, okay, electric dipole in inform electric field. तो electric dipole since potential energy storage in theta position of an electric dipole in electric field in for electric field, u theta is equal to minus pe cos theta। इतना वैल्यू था, वेयर p क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट और e क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? डी यू अपॉन डी थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस पीई डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के माइनस साइन थीटा होगा, दैट इज डी यू डी थीटा, या इसको हम लोग पढ़ते हैं डी डी थीटा ऑफ डी डी थीटा ऑफ यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। ठीक है, ओके। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, मीन्स डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगेन करेंगे पीई डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा, ओके। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E, ओके। पहले हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल जैसा कि रखा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बोर्ड लेवल पर भी पूछा गया है। केस नंबर यदि 1 की हम लोग बात करें, एक वेक्टर ए है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, इफ थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट केस की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ए इज 0, तो माइनस क्यू इधर रखना होगा, पॉजिटिव क्यू इधर रखना होगा। वेक्टर पी का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट टू राइट ही होगा। तो एंगल कितना? वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ओके। मीन्स डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर के वैल्यू कितना मिलेगा? थीटा के वैल्यू 0 इसमें रखेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा? पीई, और ये वैल्यू है क्या? पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मीन्स इस टाइप को स्टेबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। और इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स
आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टाइप रखना होगा, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो इस टाइप। ओके, यहाँ पर वेक्टर टी का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ऐसा टाइप होगा। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, वेक्टर टी का डायरेक्शन किधर है, राइट टू लेफ्ट है, मीन्स 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी ए आएगा। यदि सेकेंड डेरिवेटिव d2 u अपॉन डी थीटा की वैल्यू यदि नेगेटिव आएगा, मीन्स 180 डिग्री रखने पर माइनस पी ए आएगा जो कि नेगेटिव वैल्यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग रख दें, 90 डिग्री रखेंगे तो इसमें वैल्यू रखेंगे cos 90 वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यदि 0 होगा तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आई होप से क्लियर होगा। तो ये आपका डिस्कशन हो गया, मतलब डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक्स।